Hello students, how are you? Students, today I am going to explain the poem The Old Brown Horse, and it is taken from your literature book. So all the students open the page number 31 and get ready for understanding. Students, open the page number 31 and put your fingers and take a pencil in your hand. Wherever you feel the hard words, you can underline on the same times. Students, this is the poem about one horse who is very old and he is not in use nowadays, and it is written by W.F. Holmes. So students, first I will read the poem. The old brown horse looks over the fence in a weary sort of way. He seems to be saying to all who pass, well folks, I have had my day. I am simply watching the world go by, and nobody seems to mind. As they are dashing past in their motor car, a horse who is lame and half blind. The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim, and he used to trot through the woods and lanes with the man who was fond of him, but his master rides in a motor car, and it makes him feel quite sad when he thinks of the days that used to be, and of all the times they had. Sometimes a friendly shoal would stop near the fence where the tired old hat rests wearily on the topmost bar, and a friendly word is said. Then the old brown horse gives a little sigh as he feels the kindly touch of a hand on his mane or his saggy coat, and he doesn't mind so much. So if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who was once as young and as full of life as you. He will love the touch of your soft young hand, and I know he will seem to say, oh, thank you, friend, for the kindly thought for a horse who has had his day. Students, in this poem, though the poet wants to explain the feeling of the old horse who is feeling very tired and nobody is caring about him. So we will understand the poem. The old brown horse looks over the fence. जो old brown horse है यानी कि जो एक बूढ़ा ब्राउन यानी कि भूरा घोड़ा है, वो अपने फेंस यानी कि फेंस मतलब क्या होता है, दीवार, अपने दीवार के ऊपर से देखता है। इन अ वेरी शॉर्ट ऑफ वे, बहुत ही उबाऊ, मतलब वह इतना ऊब चुका है और जो उससे सामने जो रास्ता दिखता है उसके सामने वो देखता रहता है। ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल हु पास, और ऐसा प्रतीत, ही सीम्स टू बी सेइंग मतलब वो ऐसा कहता हुआ प्रतीत होता है जो कि उस ऑल हु पास, जो भी उस रास्ते गुजरता है उससे जैसे लगता है कि वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कहना चाहता है। वेल फॉक्स आई हैव हैड माई डे, सबसे वो यही कहता है कि वेल फॉक्स यानी कि मित्रों, फॉक्स मतलब दोस्तों, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों, आई हैव हैड माई डे, मेरा भी एक समय था, यानी कि जब वह यंग था तो वो उसका भी एक समय था। आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाई, जो हॉर्स है वो कहता है कि मैं यहाँ से बहुत ही साधारण सामान्य तरीके से लोगों को, जो दुनिया है यहाँ से आती जाती इस रास्ते से आ जा रही है उसको मैं देख रहा हूँ। एंड नो बडी सीम्स टू माइंड, और कोई भी, नो बडी यानी कि कोई भी, सीम्स टू माइंड ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसकी उपस्थिति को वहाँ कोई सोचता है या समझता है, मतलब कोई भी उसको माइंड नहीं करता है, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। एज दे आर डैशिंग पास इन देयर मोटर कार, जब वो यहाँ से अपने अच्छी अच्छी मोटर कार्स में, अपनी कार्स में, अपनी गाड़ियों में लोग वहाँ से गुजरते हैं तो उस घोड़े की तरफ कोई भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। अ हॉर्स हु इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड, मतलब कि जो हॉर्स अब बहुत ही दुबला पतला हो गया है, कमज़ोर हो गया है, एंड
थोड़ा अंधा, मतलब उसको अब कम दिखाई भी देता है। The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim. इस समय जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स है, यानी कि जो बूढ़ा घोड़ा है, उसका जो सैगी कोट, यानी कि आपने कभी देखे होंगे ना, जो उसके बड़े बड़े गर्दन पे बाल होते हैं, उसको सैगी कोट, उसका वो बहुत ही मतलब इसमें अस्त व्यस्त है। बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम, लेकिन जब वो यंग था, यानी कि जब वो जवान था, तो उसका जो ये सैगी कोट था बहुत ही ट्रिम और खूब सुंदर ट्रिम करके उसको बहुत ही कंघा उंघा करके उसको ठीक किया रहता था उसका मालिक। एंड ही यूज टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन, और जब वो यंग था तो ट्रॉट मतलब वो पूरे टाइम इधर उधर दौड़ता घूमता रहता था जंगलों में और सड़कों पे। विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, किसके साथ? जो कि उसका मालिक था, जो कि उसको पहले उस समय बहुत चाहता था। बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार, लेकिन अब उसका मास्टर यानी कि उसका जो मालिक है, अब वो किस में राइड्स करता है, यानी कि वो मोटर कार यूज़ करता है, ना कि घोड़े को यूज़ करता है। एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, और जिसको कि घोड़ा देख के बहुत थोड़ा दुखी होता है, क्योंकि अब उसका मालिक उसको उतना ध्यान उस पर नहीं देता है। When he thinks of the days that used to be, जब वो इस चीज़ को बहुत सोचता है कि जब उसका मालिक उसके साथ उसको मतलब सवारी के लिए यूज़ किया करता था, एंड ऑफ ऑल द टाइम्स दैट दे है, मतलब वो पूरा टाइम जब वो इस चीज़ को सोचता है कि उस यंग जब वो था, तो कैसे उसका मालिक उसका केयर करता था, कैसे उसको यूज़ किया करता था, कैसे हमेशा उसके पापा अपने साथ रखता था, जो कि अब मोटर कार में घूमता है तो उसको ध्यान नहीं देता, तो उसको बहुत सैड करता है, दुखी करता है। समटाइम्स अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप, घोड़ा सोचता है कि कभी ना कभी, समटाइम्स मतलब कभी, कोई ऐसा दोस्त, कैसा कोई फ्रेंडली सोल, यानी कि कोई भी जो जिसके अंदर उसके लिए अपनापन होगा, वो ज़रूर वहाँ रुकेगा। नियर द फेंस, यानी कि दीवार के पास, इसका जो बाउंड्री है उसके पास। वेयर द टायर्ड ओल्ड हेड, जहाँ की वो बूढ़ा घोड़ा अपना सिर हमेशा उस पर टिका कर देखता रहता है सड़क पे। रेस्ट वियरली ऑन द टॉप मोस्ट बार, यानी कि जो उबाऊ जो समय है वो ज़रूर उसके ऊपर, जो दीवार के ऊपर है, अपना सर रख के उबता रहता है थका हुआ, ज़रूर कोई ना कोई उसको एक बार उसके पास रुकेगा। एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सेड, और क्या करेगा, उसको थोड़ा क्या करेगा, थोड़ा सिंपैथी देगा, या फिर उसको थोड़ा सा प्यार देगा। देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई, उसके बाद क्या करता है ओल्ड ब्राउन हॉर्स, मतलब ये सब सोचते हुए कि कभी ना कभी कोई आएगा जो मुझे प्यार से मुझे सहलाएगा, तो थोड़ा सा वो गहरी सांस लेता है, लिटिल साई यानी कि थोड़ा सांस लेता है, गहरी सांस लेते हुए। एज ही फील्स द काइंडली टच, जैसे उसको लगता है कि कोई उसको बहुत ही प्यार से टच कर रहा है, छू रहा, स्पर्श कर रहा है उसको। ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन और हिज सैगी कोट, वो ये महसूस करता है कि उसके जो मेन है, यानी कि जो उसके बाल हैं, उसको कोई उसको सहलाएगा, प्यार से उसको सहलाएगा। एंड ही डजंट माइंड सो मच, और ये बिल्कुल ध्यान नहीं देगा कि ये घोड़ा बूढ़ा हो चुका है। सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे, यानी कि अब राइटर कहता है, पोएट कहता है कि अब मतलब इस घोड़े की जो स्थिति थी उसको राइटर ने, पोएट ने आपको बताया, तो अब ये चाहता है कि जब आप कभी भी उस फील्ड, यानी कि जहाँ वो बूढ़ा घोड़ा है, वहाँ पे अगर कभी भी गुजरो, तो जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड आर टू, यानी कि थोड़ी देर के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए उसको थोड़े प्यार भरे शब्द कहने के लिए रुक जाओ। विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वॉज वंस एज यंग, उस बूढ़े घोड़े के साथ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जो कि पहले यंग था, जो कि वो बहुत अच्छा, उसके मालिक भी उसको पूछता था। एंड एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, और उसके पास उतना ही अच्छा वह बहुत प्रसन्न था, खुश था उस टाइम जब जैसे कि आज तुम हो। ही विल लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड, वो तुम्हारे जो आप प्यार से उसको सहलाओगे, प्यार से उसको टच करोगे, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड आई नो ही विल सीम्स टू से, और वह ज़रूर, मुझे लगता है कि वो ज़रूर आपको, मैं जानता हूँ कि वो ज़रूर आपको क्या कहेगा, ओह थैंक यू फ्रेंड, क्या बोलेगा, धन्यवाद मेरे दोस्त, फॉर द काइंडली थॉट, क्योंकि तुमने मुझे, मेरे पर दया की और तुमने मेरे लिए सोचा। फॉर अ हॉर्स हु हैज़ हैड हिज डे, यानी कि वो पोएट कह रहा है कि जब आप उसको प्यार से टच करोगे, उससे बातें करोगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा, और वो आपको थैंक यू भी कहेगा, धन्यवाद भी वही कहेगा कि आपने उसके लिए थोड़ा सा समय निकाला, प्यार दिया,
और उसके बारे में सोचा। स्टूडेंट्स, यहाँ पोएट आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि जब भी हम कोई पेट वगैरह रखते हैं तो जब वो यूज़लेस हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है, तो हम उसको इधर उधर ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट वी शुड नॉट डू दिस। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all are understood the poem. So thank you.